Welcome to our perfect classes. In this video, I will discuss about important questions of UGC NET for the preparation of December exam 2024. Now, first question I am going to discuss, that is the register that stores the basis bits required to mask the to mask the interrupts is ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट है इंटरप्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। सेकंड ऑप्शन है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। नाउ थर्ड ऑप्शन है इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर। फोर्थ ऑप्शन है स्टेटस रजिस्टर। Here you can see that interrupt request register is used for when interrupt is active, then we use interrupt request register, and interrupt service register when invoked response to interrupt, then we use interrupt service register, and status register is used for the status of CPU at the time of logic operations like arithmetic operations, etc., and arithmetic operations. And interrupt mask register is used when we want to store the bits which is required to mask interrupts, then we use interrupt mask register. Now next question is question number 2. In dash addressing mode, the in operands are stored memory. The address of the corresponding memory location is given in a register which is specified in the instructions. Option available है displacement. Second option available है base indexed. Third option available है register direct, and fourth option available है
register indirect. Now what will be the answer of this question? इन डैश एड्रेसिंग मोड, कौन से एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड्स को आप मेमोरी में स्टोर करते हो, और एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी जो लोकेशन है वो एक रजिस्टर में दिया होता है जो कि स्पेसिफाइड करता है इन इंस्ट्रक्शंस में। तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट एंड हाउ here you can see this is first register query. Here you have to query register and then it go on the address, then go on where operand is stored in memory. This is also register and memory from where you will find out operand. Now next question is you have given, this is third question, the output of the following combinational circuit. We have given this picture, you can see here this is given diagram of gate, and you have given option XNOR, second XOR, third option X minus Y, fourth option X plus Y. You can see here this symbol represent to negation of X, negation of Y, and here implement NAND gate. Then you can see, you can write it first AND gate, then again take NAND. Here this is X, this is Y, and take negation of XY because this is a NAND gate. And after writing again this in the form of NAND gate and take the negation of whole. Now open this like you
can see this is 1. And now यहाँ पर आपने ये वाला नेगेशन, एक लाइन और डालनी है नेगेशंस की, क्योंकि ये वाली है। फिर आपने नेगेशन से नेगेशन यहाँ पर कैंसिल हो गया, इधर भी नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या रह गया, नेगेशन ऑफ एक्स, नेगेशन ऑफ वाई, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा इसके कारण, जो ये वाला नेगेशन है, प्लस एक्स वाई। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स नॉर को, इसलिए आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ए प्रायोरिटी क्यू, एक प्रायोरिटी क्यू है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इज इम्प्लीमेंटेड एज ए मैक्स हीप, implemented as a max heap. Initially it has 5 elements. इनिशियली इसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। द लेवल order traversal of the heap is as follows. ऑप्शंस अवेलेबल हैं 20, 18, 17, 12, 13, 10, 15। सेकेंड ऑप्शन है 20, 18, 17, 15, 13, 12, 10। थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है 20, 18, 17, 10, 12, 13, 15। फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है 20, 18, 17, 13, 12, 10 एंड 15। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है मैक्स हीप लेकर। इनिशियली इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। लेवल ऑर्डर ट्रांवर्सल ऑफ हीप हमें बताना है। तो फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास 20 है, ठीक है। 20 से नेक्स्ट क्या आ रहा है, 18 और 17। फिर नेक्स्ट 13, 12। अब 17 के बाद हमें 10 और 17 को यहाँ पर एडजस्ट करना है। 5 एलिमेंट्स, सॉरी आधी मैंने स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं लिखी। 1 minute। मैक्स हीप initially it has 5 elements, the level order traversal is as follow। आगे लिखी नहीं, हमारे पास वैल्यूज गिवन है 20, 18, 15, 13 एंड 12, ठीक है। हमें 2 न्यू एलिमेंट ऐड करने हैं। वो दोनों न्यू जो एलिमेंट्स जो ऐड करने हैं वो कौन कौन से एलिमेंट है, वो गिवन है 10 एंड 17 को इंसर्ट करना है हीप में। और जो लेवल ऑर्डर ट्रांवर्सल है हीप का, आफ्टर इंसर्शन क्या बनेगा वो हमें इस ऑप्शन में से चूज़ करना है।
तो हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन थी वो क्या थी, 20, 18, 15, देन 13, देन 12। पहले हमने 20 ले लिया, 20 के नीचे 18 और 17, फिर 18 के नीचे आ गया 18, हमारे पास यहाँ पर पहले आएगा 18 और 15, फिर 13 और 12। पर नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हमें इंसर्ट करना है, 10 और 17। अकॉर्डिंग टू रूल इन मैक्स हीप रूट शुड बी मैक्स देन child, so that's why here we will interchange 17 with 15, interchange. So that's why here we will write 17 and here we will write 15. And there are first, this is a first level, level 0, we will call it level 0. This is a level 1 and this one is a level 2. ओके, तो फर्स्ट लेवल लिखोगे, क्या आएगी वैल्यू 20, देन सेकेंड लेवल कंप्लीट लिखोगे 18, 17, देन नेक्स्ट लेवल को लिखोगे 13, 12, 10 एंड 15. You can check this option will be match with 20, 18, 17, 13. Where is that 20, 18, 17, 15? No, there is a 20, 18, 17. After 17, there should be 13, then 12, then 10, then 15. So option number D is matched. Now next question is, question number 5. Consider the following statements. Consider the following statements. Following statements. फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है असाइनमेंट, assignment problem can be used to minimize the cost. Second statement given है assignment problem is a special case of transportation problem. Third one, assignment problem requires that only one activity be assigned to each resource. ठीक है, और we have to find that which option is correct. Options are available. First option 1 and 3, second 1 and 2, third one 1, 2, 3, and fourth option second and third only. हाँ जी, इसमें ये बता रहा है कि असाइनमेंट जो प्रॉब्लम है उसको आप किस लिए यूज़ करते हो,
you can by using assignment problem you can find the minimum cost. सेकेंड, असाइनमेंट प्रॉब्लम एक स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ये भी सही है। तो दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक एक्टिविटी को ही आप एक रिसोर्स को असाइन कर सकते हैं, मतलब एक जॉब जो है एक बंदा ही उसको, एक पर्सन को ही असाइन की जा सकती है। तो ये हो गया आपका ट्रू। सो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। what are the what are the sequence of sequence of steps taken in designing taken in designing a fuzzy fuzzy logic fuzzy logic machine। ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है रूल इवेल्युएशन, देन defuzzification, for then fuzzification। second option is rule evaluation, rule evaluation, then fuzzification, then defuzzification। and third option, first fuzzification, then defuzzification, and then rule evaluation। and fourth option, fuzzification, then rule evaluation, and then defuzzification। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कौन से लिए जाते हैं जब आपने डिज़ाइनिंग करनी है फजी लॉजिक मशीन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में आप करोगे डिफाइन फजीफिकेशन, देन रूल इवेल्युएशन इम्प्लीमेंट करोगे, रूल इवेल्युएशन, देन defuzzification करोगे, defuzzification। so that's why here match option number D। फर्स्ट ऑफ ऑल फजिफिकेशन, फिर रूल इवेल्युएशन होगी, फिर defuzzification होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
which of the following two two input boolean logic functions is linearly inseparable inseparable ऑप्शन है and or third nor fourth point XOR fifth is not XOR। ये आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल है जिनके बेस पर आपने बताना है कि कौन सी जो है इनपुट बुलियन लॉजिक फंक्शंस जो है टू इनपुट बुलियन लॉजिक फंक्शन लीनियरली इनसेपरेबल होती हैं। और आंसर्स में ऑप्शंस अवेलेबल है फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन अवेलेबल है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सी ऑप्शन अवेलेबल है सेकंड एंड थर्ड एंड डी ऑप्शन अवेलेबल है फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसमें से आंसर आपका क्या है कि जो आपके पास एक्सोर और नॉट एक्सोर है ये क्या है इनसेपरेबल लॉजिक फंक्शंस हैं जो कि इनसेपरेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिक इन्फ्रेंसेस। हमारे पास कुछ लॉजिक इन्फ्रेंसेस गिवन है, हमें उसमें से फाइंड करना है उन दोनों में से कौन सा इन्फ्रेंस सही है। फर्स्ट इन्फ्रेंस इज गिवन if it is Sunday, then school will not open, the school was open। तो इन्फ्रेंस ये है कि इट वाज नॉट संडे, सेकेंड पॉइंट में क्या गिवन है, इफ इट इज संडे then school will not open, it was not Sunday, then inference is it was then inference is the school was open। अब इसमें से कौन सी इन्फ्रेंस सही है हमें वो मार्क करना है। ऑप्शन अवेलेबल है बोथ करेक्ट, सेकंड ऑप्शन है वन I1 करेक्ट, बट I2 नॉट करेक्ट, एंड
थर्ड ऑप्शन है I1 is not correct, but I2 is correct. Both not correct. अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ इट इज़ संडे। जो हमारे पास इफ़ इट इज़ संडे है, जो लिखा है ना, इट इज़ ए संडे, इट इज़ संडे, इसको आपने रिप्रेजेंट किया पी के साथ। स्कूल विल नॉट ओपन, स्कूल विल नॉट ओपन, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप क्यू के साथ। फिर क्या लिखा है, द स्कूल वाज ओपन, तो इसका क्या आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू, बिकॉज इट इज रिवर्स ऑफ क्यू। एंड इन्फ्रेंस क्या था, इट वाज नॉट संडे। तो अगर संडे होने की हमने क्या लिखी, पी, तो नॉट संडे मतलब नॉट पी, नॉट पी। और जब हम इस इन्फ्रेंस को सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू। और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, नॉट पी। कैसे, ये देखो, अगर इफ इट इज संडे है तो पी है, देन स्कूल विल नॉट ओपन, मतलब अगर संडे है तो स्कूल ओपन नहीं होएगा ना। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू को। द स्कूल वाज ओपन, अगर स्कूल खुला है तो ये किसका रिवर्स बता रहा है, स्कूल विल नॉट ओपन का, तो नेगेशन क्यों लिखा। और अगर ये तीनों चीज़ें हैपन हो रही है तो इसका मतलब इट वाज नॉट संडे, नॉट इम्प्लाई आ गया, नॉट सॉरी नॉट पी आ गया। अब इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू। क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, नॉट पी। तो ये क्या है, ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो ट्रू है। अब सेकंड के अकॉर्डिंग कहता है इफ़ इट इज़ संडे, अगर संडे है, पी को रिप्रेजेंट, स्कूल विल नॉट ओपन, स्कूल ओपन नहीं होगा, इसको उन्होंने क्यू डैश के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर हम क्यू मान के चलेंगे इसको, उसके ऑपोजिट नीचे लिखेंगे। हाँ, फिर उसके बाद इट वाज नॉट संडे, अगर संडे नहीं है यानी कि नॉट इम्प्लाई, नॉट पी, स्कूल वाज ओपन, स्कूल खुला था, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव ऑफ क्यू हो गया, ये जो क्यू है उसका रिवर्स आ गया। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप फिर इसमें, पी इम्प्लाइज क्यू एंड नॉट पी, और इनका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, नॉट क्यू। सो ये फॉल्स है, फॉल्स है। और जो प्रीवियस हमने पॉइंट सॉल्व किया वो ट्रू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि I1 करेक्ट है बट I2 इज़ नॉट करेक्ट इन्फ्रेंस। तो ऑप्शन कौन सी चूज करेंगे, I1 is correct but I2 not correct. Second option will be correct. Now next जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मशीन लर्निंग टाइम कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है।
क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो इनकी कम्प्लेक्सिटी क्या क्या होती हैं वो बता रही हूँ। अगर आपके पास क्या गिवन है, ये कॉन्सेप्ट ही है। अगर लीनियर रिग्रेशन गिवन है, लीनियर रिग्रेशन, जो लीनियर रिग्रेशन है उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या आती है, ओ नोटेशन एन पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब। और इन्फ्रेंस टाइम क्या होता है इसका, ओ नोटेशन पी। ये क्या है, ट्रेनिंग टाइम, और ये क्या है, इन्फ्रेंस टाइम। ऐसे हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसका क्या आएगा, ट्रेनिंग टाइम वो आएगा बिग ओ नोटेशन एन पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब, सेम है लीनियर रिग्रेशन की तरह। और जो इसका इन्फ्रेंस टाइम है वो भी ओ बिग ओ नोटेशन पी होगा। देन नेव वेयर्स, इसमें ट्रेनिंग टाइम जो है वो बिग ओ नोटेशन एन पी लोगे, और इन्फ्रेंस टाइम जो है वो बिग ओ नोटेशन पी होगा। देन अगर आपके पास के मीन्स है तो उसका ट्रेनिंग टाइम जो कम्प्लेक्सिटी है वो ओ नोटेशन बिग ओ नोटेशन 1 है, और इन्फ्रेंस की क्या आएगी, बिग ओ नोटेशन एन पी है। ठीक है, और जस्ट ए मिनट, इसमें हमारे पास अगर लिखा है प्रीम्स एल्गोरिदम, प्रीम्स एल्गोरिदम, तो उस केस में इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, उस केस में इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ नोटेशन E is represent to set of edges, log V represent to set of nodes। एंड नेक्स्ट हमारे पास है वेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, वेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ओ नोटेशन V स्क्वेयर E, दैट मीन्स बिग ओ नोटेशन ऑफ नंबर ऑफ नोड्स का स्क्वेयर और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट ऑफ एजेस। नेक्स्ट है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम, इसकी कम्प्लेक्सिटी है बिग ओ नोटेशन वी क्यूब, मीन्स नंबर ऑफ नोड्स का क्यूब करना है आपने इसमें। जो जॉनसन्स एल्गोरिदम है उसमें उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बिग ओ नोटेशन नंबर ऑफ नोड्स then multiply number of edges and then take the log of number of nodes, set of nodes। तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी है जो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है जी, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
The combination of, next question is the combination of an IP address and a port number is known as dash. ऑप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है सॉकेट एड्रेस, सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है नेटवर्क नंबर, थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है सबनेट मास्क नंबर, एंड फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है मैक एड्रेस। क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने ये बताना है कि एक आईपी का कॉम्बिनेशन एड्रेस, मतलब एक आईपी का एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है, उसको क्या कहते हैं। उसको हम बोलते हैं सॉकेट एड्रेस। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एड्रेस होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट आपके पास आता है आईपी एड्रेस और सेकंड में आप लिखते हो पोर्ट नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास 64 आपके पास टोटल 48 बिट का आईपी जो कॉम्बिनेशन है आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, यानी कि सॉकेट एड्रेस जो है 48 बिट्स का होता है। इसमें आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है और जो पोर्ट नंबर होता है वो कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन 48 बिट्स होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a network with bandwidth, a network with bandwidth of 10 Mbps can pass only an average of 15,000 frames per minute। मीन्स कि आप एक मिनट में 15,000 फ्रेम्स की एवरेज को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो विद 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड बैंड विड्थ के साथ। ठीक है, पर मिनट विद ईच फ्रेम carrying an average of 8,000 bits। What is the throughput? Of this network? हमें क्या फाइंड करना है, थ्रूपुट फाइंड करनी है नेटवर्क की। क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है बैंड विड्थ ऑफ 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड और कितने फ्रेम्स वो भेज सकता है, एन एवरेज ऑफ 15,000 फ्रेम एक मिनट में, और हर एक फ्रेम के ऊपर कितना जो डेटा जाएगा वो एन एवरेज 8,000 बिट्स तक कैरी कर सकता है। तो हमें फाइंड करना है थ्रूपुट को। तो
कैसे फाइंड करोगे? हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है आंसर्स की वो है 60 मेगाबिट्स पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है 120 Mbps एंड फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड. How to solve it? You have to solve by this method. First of all, write number of frames, नंबर ऑफ मतलब थ्रोपुट निकालना है अपने, तो थ्रोपुट निकालने का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? थ्रोपुट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स डिवाइड बाय number of seconds multiply number of bits ट्रांसफर्ड, जो ट्रांसफ़र होंगे या कैरी किए जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेम्स है 15,000 एक मिनट में, पर हमें 60 सेकंड में निकालना है, इसलिए यहाँ पर 60 लिख रहे हैं. और नंबर ऑफ बिट्स कितने जाएंगे? 8,000 बिट्स जाएंगे. ठीक है, 0 से 0 कट, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4,000 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये आ गया 5 4 ज़ा 20, 2 0 एंड 3 0. तो ये हो गया हमारे पास, क्या आएगा? ये आ गए 2 लाख बिट्स पर सेकेंड, और हमें इसको चेंज करना है मेगा बिट्स पर सेकेंड में. तो इसके लिए इसको डिवाइड करोगे 10 लाख के साथ, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? कन्वर्ट होके 2 मेगा बिट्स पर सेकेंड. दिस इज आंसर. नाउ next question is in a class full addressing the IP addresses with 0 or 0 as network number. Option A refers to broadcast on the local network. Next option A refers to loop back testing. Next option A refers to broadcast on a distance network. Refers to broadcast on a distance network. And last option refers to current network. You should keep in mind that जो क्लासफुल एड्रेसिंग होती है उसमें जो आईपी एड्रेस होते हैं वो क्या होंगे? 0 एज ए नेटवर्क नंबर कब होंगे? जब वो रेफ़र किए जाते हैं करंट नेटवर्क को, तब उसको हम 0 नेटवर्क नंबर बोलेंगे, 0 या 0 एज नेटवर्क नंबर कहेंगे.
तो वो किसको रेफर करता है? करंट नेटवर्क को। किसको रेफर करता है? करंट नेटवर्क को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन belong to sequence belong to longest common subsequence when we have to find longest common subsequence. In this question we have given two sequences. Given two sequences. कौन कौन सी sequences given है? X and Y. X में वैल्यू गिवन है A, B, C, B, D, A, B और Y में वैल्यू गिवन है B, D, C, A, B, A। अब हमें फाइंड करना है द लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, longest common sequence of subsequence of X and Y। आंसर्स में ऑप्शन अवेलेबल है B, C, A। सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल है B, C, A। थर्ड है C, A, B एंड फोर्थ अवेलेबल है B, C, B, D। सो इसमें आपने क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी, फिर सी बी, फिर सी बी किसको फॉलो कर रहा है? ए बी को, डी ए बी को। और इधर पहले बी डी है, फिर सी ए, और सी ए के बाद फिर सी बी ए। तो यहाँ पर कौन किसको फॉलो कर रहा है? लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है हमने। तो ये इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? देखो ये यहाँ पर हमारे पास सेम, देखो क्या है, ये बी सी गिवन है, ये भी बी सी गिवन है। यहाँ पर बी सी का सब सीक्वेंस क्या आ रहा है? ये बी डी ए बी, और इसमें ए बी ए। जस्ट ए मिनट। इसका आंसर आएगा बी सी कोमा ए ए, बी सी बी ए, बी सी बी ए, सॉरी, हाँ फोर्थ ऑप्शन बी सी बी ए, क्योंकि यहाँ पर भी बी सी का सब नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकल रहा है वो क्या, नेक्स्ट क्या निकल रहा है? बी ए। इसमें भी आ रहा है, यहाँ से बी सी ए के बाद फिर इसमें भी बी ए आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन 4 channels. 4 channels are multiplexed. यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं वो, TDM. If each channel सेंड, अगर हर चैनल क्या सेंड करता है, 100 बाइट्स को, वो 100 बाइट्स को सेंड कर रहा है, ठीक है, पर सेकेंड, एंड वी मल्टीप्लेक्स 1 बाइट पर चैनल, then the bit rate, we have to find bit rate for the link, ऑप्शन है 3200 बिट्स पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 1600 बिट्स पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 400 बिट्स पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है 800 बिट्स पर सेकेंड. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास कितने चैनल्स हैं, 4 चैनल, एक चैनल कितने बाइट्स भेज रहा है, 100 बाइट्स भेज रहा है, और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 होते हैं, तो बिट रेट निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3200 बिट्स पर सेकेंड, आंसर आ गया. दिस इज योर आंसर. Thank you for watching my video. If you like my video, please like and share my channel with your friends, and don't be forget to subscribe my channel, and always keep smiling.